دوستو آج شہنشاہ غزل مہندی حسن کی برسی ہے۔ وہ 13 جون 2012 کو کراچی میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ کلاسیکل موسیقی کے خاندان سے تعلق رکھنے والے استاد مہندی حسن 18 جولائی 1927 کو انڈین ریاست راجستھان میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے 1957 میں کراچی میں ریڈیو پاکستان سے باقاعدہ گلوکاری کا آغاز کیا تھا۔ 1962 میں فلم فرنگی کے گیت گلوں میں رنگ برے باد نو بہار چلے آئے مہندی حسن کی پہلی مشہور غزل تھی۔ مہندی حسن کے چاہنے والوں میں نہ صرف پاکستان اور انڈیا بلکہ ساری دنیا میں جہاں اردو اور ہندی سمجھی جاتی ہے موجود ہیں۔ ان کا گیت ایک حسن کی دیوی سے مجھے پیار ہوا تھا اتنا مشہور ہوا کہ یہ گیت آج بھی مہندی حسن کے سب سے زیادہ مشہور گانوں میں شمار ہوتا ہے۔ بالی ووڈ کی معروف گلوکارہ لتا منگیشکر نے جب استاد نیاز حسین شامی کی دھن میں میر تقی میر کی غزل مہندی حسن کی آواز میں پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے سنا تو ان کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا کہ مہندی حسن کے گلے میں بھگوان بولتا ہے۔ مہندی حسن نے مجموعی طور پر 477 فلموں میں گانے گائے۔ کئی دہائیوں پر محیط اس سفر میں انہوں نے 25,000 سے زائد فلمی غیر فلمی گیتوں نغموں اور غزلوں میں اپنی آواز کا جادو جگایا۔ مہندی حسن کے سروں کی طاقت کا اندازہ اس واقعہ سے لگایا جا سکتا ہے جو انہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن پر ضیاء محی الدین شو میں خود سنایا تھا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ وہ ایک مرتبہ علامہ اقبال روڈ لاہور پر واقع خیبان ہوٹل میں اپنے شاگرد پرویز مہندی کو ریاض کروا رہے تھے کہ تقریباً 10 فٹ کے فاصلے پر رکھا ہوا شیشے کا بنا پانی کا جگ اچانک ٹوٹ گیا۔ مہندی حسن نے بتایا کہ پرویز مہندی اور انہوں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی مگر کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ جگ کیوں ٹوٹ گیا۔ پھر بہت غور کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ دوران ریاض گائے جانے والے راگ کی فریکوینسی شیشے کے جگ کی فریکوینسی سے مل گئی جس کی وجہ سے پانی سے بھرا شیشے کا جگ آواز کے ساتھ ٹوٹ گیا۔ یہ مہندی حسن کے سچے سروں کی طاقت تھی۔ مہندی حسن کو ان کی فنی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے تمغہ امتیاز سے نوازا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنی بہترین گائیکی پر 9 نگار ایوارڈ اپنے نام کیے اور لاتعداد دیگر ایوارڈ حاصل کیے۔ انڈیا نے انہیں سیگل ایوارڈ اور نیپال کی حکومت نے انہیں گورکھا دکشنا بہو کا ایوارڈ عطا کیا تھا۔ دوستو آپ کے اور ہمارے یہ بہت ہی سریلے فنکار طویل علالت کے بعد 13 جون 2012 کو ہم سے جدا ہو گئے تھے۔ انہیں نارتھ کراچی کے محمد شاہ قبرستان میں اسودہ خاک کیا گیا تھا۔ اب ایک نظر تفصیل سے ڈالتے ہیں مہندی حسن کے چاہنے والوں کے لیے مہندی حسن کی زندگی پر۔ کراچی، لاہور، پشاور، فیصل آباد، کوئٹہ، ایک راستہ پاکستان اور ایک راستہ ورلڈ۔ آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، السلام علیکم، السلام علیکم۔ دوستو مہندی حسن کا تعلق موسیقی کے کلاوند گھرانے سے تھا۔ وہ انڈیا کی ریاست جے پور کے ایک گاؤں لونا میں 18 جولائی سن 1927 کو پیدا ہوئے تھے۔ مہندی حسن کے والد کا نام عظیم خان تھا اور ان کا تعلق بھی موسیقی کی دنیا سے تھا۔ مہندی حسن جب 6 سال کے ہوئے تو ان کے والد عظیم خان نے انہیں تانپورہ سر کو سکھانا شروع کر دیا اور کہا کہ یہی تمہارا کھلونا ہے، یہی تمہارا مستقبل ہے۔ ننھا مہندی حسن تانپورہ سے راگوں کی شکلیں یاد کرنے لگا۔ مہندی حسن نے ابتدائی تعلیم اپنے والد عظیم خان اور چچا اسماعیل خان سے حاصل کی۔ مہندی حسن بچپن سے ہی بہت جفاکش اور محنتی تھے۔ آواز اور سانس کی پختگی کے لیے وہ شدید جسمانی کسرت بھی کرتے تھے۔ یہ کسرت ان کی گائیکی کا اساس بنی اور ان کی سریلی آواز مزید نکھر گئی۔ مہندی حسن کے والد اور چچا مہاراجہ بڑودہ کے دربار سے وابستہ تھے۔ انہوں نے انتہائی کم عمری میں مہندی حسن کو اس قابل کر دیا تھا کہ وہ مہاراجہ
बड़ौदा के दरबार में अपने फन का मुजाहरा कर सकें। मेहंदी हसन के फन को निखारने में उनके भाई गुलाम कादर ने भी अहम किरदार अदा किया, जो लखनऊ की मौसीकी की मुमताज दरसगाह से फारगुल तहसील थे। उसी वजह से उन्हें पंडित भी कहा जाता था। पंडित गुलाम कादर को मौसीकी के अलावा संस्कृत, हिंदी और उर्दू पर भी माहराना अबूर हासिल था। दोस्तों, क़याम पाकिस्तान के बाद मेहंदी हसन और उनके भाई पंडित गुलाम कादर लाहौर चले आए, जहां पर उन्होंने फिल्मी सन्नत में कदम जमाने की कोशिश की, मगर कोई खातिर ख्वाह कामयाबी ना मिली। फिर उसके बाद मेहंदी हसन और उनके भाई पंडित गुलाम कादर चीचा वतनी चले आए, जहां उन्हें साइकिलों की मरम्मत का काम भी करना पड़ा। उसके बाद चीचा वतनी से मेहंदी हसन के खानदान ने सक्खर का सफर किया। सक्खर आने के बाद रोजगार के सिलसिला में मेहंदी हसन को एक वर्कशॉप में डाल दिया गया, जहां पर वो गाड़ियों के इंजन पर काम करना सीख रहे थे। फिर तकरीबन 300-350 इंजन मेहंदी हसन ने अपने हाथों से बांधे। जो मैकेनिकल ब्रांच से तल्लक रखते हैं, इंजनों का काम जानते हैं कि ये काम कितना मुश्किल होता है। मेहंदी हसन पेट पालने के लिए गाड़ियों के मैकेनिक का काम तो कर ही रहे थे, मगर मौसीकी से उनका लगाव जुनून की हद तक बरकरार रहा। उसी जमाने में उन्होंने रेडियो पाकिस्तान कराची में मौसीकी के प्रोग्रामों के हसूल के लिए ऑडिशन दिया, और उनका ऑडिशन रेडियो पाकिस्तान के प्रोड्यूसर अनवर अनायतुल्लाह ने उस वक्त लिया। और जब वो गाना गा रहे थे तो उनकी आवाज़ अनवर अनायतुल्लाह साहब को बहुत पसंद आई, और उन्होंने उसी वक्त रेडियो पाकिस्तान कराची के डायरेक्टर जी के फरीद को बुला लिया। उन्होंने भी मेहंदी हसन की आवाज़ पसंद की और उनसे ठुमरी सुनी तो वो बहुत खुश हुए, और उन्होंने जांच लिया ये कोई मुस्तकबिल का बड़ा फनकार है जो आज हमारे पास आया है। और फिर गाहे बगाहे रेडियो पाकिस्तान कराची पर उन्हें बुलाया गया, और साथ ही उन्होंने शादी ब्याह और ऐसे दूसरे प्रोग्रामों में अपनी गायकी का जादू जगाना शुरू कर दिया। इन प्रोग्रामों में ज्यादातर तल्लत महमूद के गाने सुनाए जाते थे। ऐसे ही एक शादी की तकरीब में जहां मेहंदी हसन की मुलाकात फिल्मों के हिदायतकार रफीक अनवर से हुई। रफीक अनवर को उनकी गायकी बहुत पसंद आई, और उन्होंने मेहंदी हसन को अपनी फिल्म शिकार में गाने की दावत दी। मेहंदी हसन ने यह दावत फौरन कबूल कर ली और कराची आकर 4 नगमात की रिकॉर्डिंग करवा दी। उन 4 नगमात में से 2 मेहंदी हसन ने तन्हा गाए और 2 में उनका साथ मद्दू अलमास ने दिया। उन नगमात को हफीज जलंधरी और यजदानी जलंधरी ने लिखा, और उनकी मौसीकी असगर अली हसैन ने तरतीब दी थी। मेहंदी हसन ने फिल्मी दुनिया के लिए जो पहला नगमा रिकॉर्ड करवाया था, उसके बोल थे, मेरे ख्यालो ख्वाब की दुनिया लिए हुए हो। दोस्तों, फिल्म शिकार के तमाम गाने बहुत मकबूल हुए, मगर फिल्म कामयाब ना हो सकी। मेहंदी हसन की बतौर गुलकार अगली फिल्म कुंवारी बेवा थी, जिसे नजम नकवी ने डायरेक्ट किया था, और इस फिल्म में अदाकारा शमी मारा को लिया गया था, और ये शमी मारा की पहली फिल्म थी। इस फिल्म में मेहंदी हसन ने कौसर परवीन के साथ 2 नगमे रिकॉर्ड करवाए, जिनकी मौसीकी कादरी फरीद और फतेह अली खान ने तरतीब दी, और इन गानों को तफैल अशारपुरी ने तहरीर किया। दोस्तों, ये बताता चलूं, ये वो जमाना था जब पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और गुलकार सलीम रजा और मुनीर हुसैन का राज था, और अहमद रुश्दी आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह बना रहे थे। ऐसे में 1962 में फिल्म ससुराल में मौसीकार हसन लतीफ ने मुनीर नियाजी की गजल जिसने मेरे दिल को दर्द दिया उस शक्ल को मैंने बुलाया नहीं मेहंदी हसन से गवाया, और इस फिल्म ने हकीकत में मेहंदी हसन को पूरे पाकिस्तान में शोहरत बख्शी, और इस नगमे ने पूरे पाकिस्तान में धूम मचा दी। जिसने मेरे दिल को दर्द दिया उस शक्ल को मैंने भुलाया नहीं। और अवामी मकबूलियत ने मेहंदी हसन पर फिल्मी सनत के दरवाजे खोल दिए, जिसके बाद उन्होंने पलट कर नहीं देखा। फिल्मी सनत में मेहंदी हसन की मुबारक राइयां अपनी जगह, मगर उसके साथ साथ मेहंदी हसन गजल के मैदान में भी झंडे गाड़ते चले गए। सन 1964 में उन्होंने रशीद अत्रे की कंपोजिशन में फिल्म फरंगी के लिए फैज अहमद फैज की मशहूर गजल
गुलों में रंग भरे रिकॉर्ड करवाई तो गजल की गायकी को एक नया अंग और आहंग मिल गया, जिसने गजल को एक नई जिंदगी अता कर दी। फिर वो फिल्मी दुनिया में इतने मसरूफ हो गए कि हर फिल्म की कामयाबी की ज़ामन उनकी आवाज़ समझी जाती थी और उन्हें उनके चाहने वालों ने शहंशाह गजल का खिताब दिया। मेहंदी हसन के सुरों के बारे में एक किस्सा उन्होंने खुद ही सुनाया था कि उनके सुरों में कितनी ताकत है। आप भी इससे अंदाजा लगा सकते हैं। उन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन के मशहूर मरूफ मेज़बान ज़िया मईनुद्दीन के शो में एक वाक़या सुनाया था। एक मरतबा वो अल्लामा इकबाल रोड लाहौर पर वाक़या खैबान होटल में अपने शागिर्द परवेज़ मेहंदी को रियाज करवा रहे थे कि तकरीबन 10 फुट के फासले पर रखा हुआ शीशे का बना हुआ पानी का जग अचानक टूट गया। मेहंदी हसन ने बताया कि परवेज़ मेहंदी और उन्होंने इधर उधर नजर दौड़ाई मगर कुछ समझ नहीं आया। बहुत गौर करने के बाद मालूम हुआ कि दौरान रियाज गाए जाने वाले राग की फ्रीक्वेंसी शीशे की जग की फ्रीक्वेंसी से मिल गई थी, जिसकी वजह से पानी से भरा शीशे का जग आवाज के साथ टूट गया। ये मेहंदी हसन के सुच्चे सुरों की ताकत थी। मेहंदी हसन और उनकी फनी खदमात को सराहते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें तमगा इम्तियाज और हलाले इम्तियाज से नवाजा था और इसके अलावा उन्होंने अपनी बेहतरीन गायकी पर 9 निगार पब्लिक अवार्ड और लातदाद दीगर अवार्ड हासिल किए। इंडिया ने उन्हें सैगल अवार्ड और नेपाल की हुकूमत ने उन्हें गोरखा दक्षिणा बहु का अवार्ड अता किया था। उनके बारे में पाकिस्तान की मशहूर मरूफ गुलकारा मलका तरन्नुम नूरजहां ने कहा था, मैंने तानसीन का सिर्फ नाम सुना है, उनको देखा नहीं, लेकिन मैं मेहंदी हसन के रूप में तानसीन को देखती हूँ। जबकि इंडिया के मशहूर मरूफ गुलकारा लता मंगेशकर ने उनके बारे में कहा था कि मेहंदी हसन के गले में भगवान बोलता है, यानी कि वो भी उनकी गायकी से मुतासर थी। दोस्तों, पाकिस्तान के मशहूर मरूफ लेजेंड गुलकार मेहंदी हसन तवील अलालत के बाद 13 जून 2012 को कराची में इंतकाल कर गए थे और उन्हें नॉर्थ कराची के मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में दफन किया था। आखिर पर हम दुआगो हैं, अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह अता फरमाए, आमीन। और अपने सब्सक्राइबर से ये कहना चाहूँगा, अगर आप मेहंदी हसन के बारे में कोई मालूमात रखते हैं तो हमारे साथ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है, आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ है, हमारा ये चैनल नया है, हमें अपना प्यार दीजिए और इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूँ।